नाम कुछ सारा बात हमको पढ़ लेना नया एक कोड है अभी सब नहीं लगे। हो गया 5 मिनट पहले ये लोग तो हो जाते हैं। वो क्या कुछ लोग अभी देखिए ना सब आ रहे हैं हाँ। ज्वाइन कितने ज्वाइन कर रहे हैं। अभी मैंने शुरू नहीं हुआ। जुड़ रहे हैं 3 बजे से स्टार्ट होगी तो अपने आप आ आवाज हाँ फिर सबकी फोटो आएगी एक बार बिना सिंपल सा नहीं हुआ करवाएंगे कोरोना काल में 1 जून से 22 अरे उम्र तो कोई बड़ी वो जूम मीट में हो जाता है। हाँ वो सरल रहा। तो वहाँ आचार्य जी उनका बस चल रहे हैं यार कैड में। पूरा पूरा हेलो सर। रश होगी सर को। ले आओ जी लाइव है हम तो। कैसे जोड़े? At what time we will start? So next 2-3 minutes, sir, because around 200 plus schools have joined. So Okay. last 2-3 minutes are all 100 plus have joined, sir. With that 1 or 2 minutes we'll wait and we'll start, sir. Okay. Just Moving next to 2 your minutes. joint. सर हेलो Namaste. नमस्ते सर नमस्ते I request all the participants to go on mute Namaste, mode. Govinji. Good afternoon, sir. ये Govinji. I will request all others to go on mute, please. All are requested to mute your mic. Sound is being reflected. Please let speak the speaker. I would like to request each and everyone present here, please go on mute. We will be having a separate time frame for the question and answer. And then you can raise your hand and we can unmute you and you can ask your question. Meanwhile, you are sincerely requested to be on mute. Good afternoon, sir. Yes. See, as admin Pankaj, I would say Seema, as admin you can mute everyone. Only no the speakers or speaker by speaker you can unmute. Yes, sir. Yes. Because it looks many are not comfortable with WebEx and they are not in mute mode. Yes. Pankaj, you can take it as co-host, no? Because you. Pankaj, you take it as a co-host and you can mute because you know who are all the speakers. Sure. I'm just requesting the host rights. Yeah, I'm the co-host. I'll do that. Yeah. Thank you. Yeah. So you can mute everyone. So speaker by speaker, you can just unmute. Sure. So that it becomes easy. Sure, sir. Thank you.
Yeah. Pooja, we can start now because we are nearly 300 now. 300 schools have joined. You can start. Dr. Alien. मीटिंग में बोलना है कि अंग्रेजी में बोलना है? Helen, he has also joined now. We can see him also. So let's start. Good afternoon, sir. I joined to SVM Lalganj Hara. Please go on mute, friends. Please go on mute. We have been telling this for n number of times now. Pankaj, are you there? Yes, sir, I am there. Yes, sir. Helen, sir? Yes, we'll start now. We are starting now. Pooja, you can start. Everyone else, please go on mute. It is not possible to ask each and everyone one by one. Please be on mute. Sincere request. Good afternoon, everyone. Deependra, you don't understand. Yes. Dear participant, I request everyone to off your video and also mic. Participants, you can request everyone to off your video and mic. Only the speakers will be addressing. You can on your mic during question and answer session. Once again, I repeat, all the participants are requested to go and mute your mic as well as the video. Kokandhar, go on mute. Chaya, go on mute. Swaroop, go on mute. Pankaj, are you not able to make it mute, Pankaj, from your end? When I am unmuting, I can unmute everyone, including the speaker also. And it has become difficult to mute one by one. So that's why they are unmuting again and again themselves. That is again an issue. So once we are muting, please do not unmute yourself to speak. We will give you a chance to ask your questions and then you can unmute yourself. Meanwhile, we are having very distinguished guest with us, our own very head of the cell, Chief Innovation Officer. These two persons will be speaking. We have to listen. So please go on mute. Meanwhile, we will give you a chance to speak as well. Thank you. Sir, we should start, sir. I am saying, Ellen, just go ahead and start. Okay, good afternoon, everyone. It's my delight to welcome you all in the first orientation session on School Innovation Council. School Innovation Council initiative has been launched by Honorable Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Education on 1st July 2022. It's a novel initiative to systematically handhold schools in establishing ideation, innovation, and entrepreneurial ecosystem in a sustainable manner. The council will be regularly guided and handholded by Ministry of Education's Innovation Cell.
We are very happy today that we have with us as the expert speaker Shri Govind Chandra Mohanta, sir, Joint Organizing Secretary, Vidya Bharati Akhil Bharatiya Shiksha Sansthan. We also have with us here Dr. Abhay Jere, Chief Innovation Officer, Ministry of Education's Innovation Cell. And also with us, we have Dr. Ellen Bowen Kariyappan, Assistant Innovation Director, Ministry of Education's Innovation Cell. So also a matter of pleasure for all of us is many Vidya Bharati schools are also joining this session today. And we will be briefing you all about School Innovation Council, what is its importance, what is the role of School Innovation Council in the school education system, and how it will be handholded by Ministry of Education's Innovation Cell throughout the year. So I request Shri Govinda Chandra Mohanta sir to brief about the Vidya Bharati school and also throw some light on how Vidya Bharati school can also participate in the School Innovation Council initiative. Before I invite sir, let me just also brief you that at the end of the session, session, we are going to have a question and answer session as well, where you can raise your any question related to School Innovation Council initiative. And also, this session is being live webcasted on our YouTube channel, Ministry of Education Innovation Cell. So if any of you is finding any technical difficulty in joining this session through WebEx, you can join it through our YouTube channel as well. At the end of the session, we will also show you a demo of our portal on School Innovation Council. For that, Mr. Pankaj Pandey from Ministry of Education Innovation Cell will be giving a demo. And now I request Shri Govind Chandra Mohanta sir to kindly address his speech. डॉक्टर अभिजय सर नमस्ते Namaskar. Pooja madam and all the team of innovation section of Ministry of Education, I am glad to inform throughout the country, to west, north to south, there are 12,000 schools run under Vidya Bharati, and I have requested them to join most of district headquarters principal and other principals, and Atal Tinkering Lab in charge of those schools. I'm audible? Yes, sir, you are audible. You are very much audible. You are very much audible. Audible, sir. Audible. Okay. No problem. हाँ, तो मैं पूरे देश से जितने हमारे प्रिंसिपल्स, अटल टिंकरिंग लैब के इंस्ट्रक्टर इंचार्ज और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिला केंद्र विद्यालय के प्रिंसिपल, ऑल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, डिरेक्टरीज, विद्या भारती के सभी अधिकारी और विद्या भारती के सभी डॉक्टर कमल किशोर सिन्हा also joined here, वो in charge of Atal Tinkering Lab. मैं सभी अपना स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम के जो टीम है, जिस प्रकार बात हुई थी कि अपना विद्या भारती विद्यालय को इस प्रकार कुछ विषय में जानकारी देना और अटल टिंकरिंग लैब को आगे उसको कैसा हम लेकर जाएंगे, उसके बारे में
डॉक्टर अभय सर और उनकी टीम जो अपना देश के अलग अलग विद्यालय में ऐसा अपना नवोदय विद्यालय है, एकलव्य विद्यालय है और सीबीएसई का विद्यालय है, स्किल का ये मार्गदर्शन करते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो स्किल एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट है, इंक्लूडिंग NCERT ऑल्सो, CBSE ऑल्सो, ये डिपार्टमेंट ऑफ इनोवेशन ये बहुत ही अच्छे तरीके से मार्गदर्शन करते हैं और उसमें सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार विद्या भारती स्कूल में भी ऐसा हो, इस प्रकार हम चर्चा किए थे। रघुनंदन भी हमारे था और डॉक्टर अभय मिलकर किए था। इस प्रकार एक प्रोग्राम करेंगे, फास्ट प्रोग्राम करेंगे नेक्स्ट, फिर अलग अलग हिसाब से हम कैसा AICT के अंदर में इनोवेशन सेक्शन के अंदर में हम किस प्रकार का ऑनलाइन में और ऑफलाइन में किस प्रकार हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं, इसमें हमको प्रेरणा मिलेगी। और मैं सोचता हूं कि इसके बारे में मैं इतना ही जानकारी दूंगा और आगे डॉक्टर पूजा एंड हमारे जो चीफ इनोवेशन ऑफिसर डॉक्टर अभय जरे यहाँ है, उनका हमको मार्गदर्शन मिलेगी और आगे हम इसके बारे में कैसा तैयारी करेंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार हमारे इसमें पार्टिसिपेशन रहेगा, योगदान रहेगा, उसके बारे में हम योजना बनाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। हेलो। Yes. Yeah, thank you very much, sir. Thank you for telling us, thank you for addressing Vidya Bharati School and telling about their role and how they can join School Innovation Council. Next, I would request our Chief Innovation Officer, Innovation Cell, Ministry of Education, to kindly enlighten the school about the School Innovation Council initiative. Over to you, sir. नमस्कार, थैंक यू पूजा। आदरणीय गोविंद जी, हमारे विद्या भारती के सभी स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स, शिक्षकगण, मुझे आपसे बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है और आपके सहयोग से हम ये जो पूरा स्कूल इनोवेशन काउंसिल, इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, वो हमारे स्कूल्स में कैसे प्रस्थापित हो, उसको हम कैसे आगे बढ़ाए और उसके कारण एक इकोसिस्टम कैसे हम इनोवेशन की, आइडिएशन की, एंटरप्रेन्योरशिप की तैयार करें हमारे स्कूल्स में, उसके बारे में हम सोचेंगे। इसलिए मुझे आपका सहयोग भी चाहिए, हम आपको गाइड भी करेंगे और हम आपके साथ आने वाले 2 साल तक maybe we will engage with you, maybe on monthly basis, maybe even fortnightly basis, so that, as I said, we will create that innovation ecosystem within our schools. बहुत बार क्या होता है, इनोवेशन, आइडिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये लोगों को लगता है कि ये बज़वर्ड्स है। जब हम बैठते हैं, बात करते हैं, तो ये सब शब्द लोग यूज करते हैं, नवाचार वगैरह, और ग्राउंड पे लेकिन कुछ नहीं होता है, और जो है वैसा ही चलने वाला है, और या हमको चलाना है। बट मुझे आज आपको कहना है, ये आपके माध्यम से, आपके
बाकी गुरुजियों, आपके बाकी शिक्षकों को, विद्यार्थियों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इनोवेशन हो, नवाचार हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, ये अभी बज़वर्ड्स नहीं रह गए। हमें सर्वाइवल के लिए अभी उनकी जरूरत है। So what I want to say here is, if we have to really survive and be relevant in near future, then we need to innovate. बहुत बार क्या होता है कि हम जब ऐसी सब बातें सुनते हैं, हमारे दिमाग में भी ऐसे विचार आते हैं कि हमने करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन जब हम क्लास में आगे चले जाते हैं तो वही फिर से जो लास्ट 20 साल से 50 साल से जो करते आ रहे हैं वो हम करते जाते हैं। आपको ये पता भी होगा कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और उसमें इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे बहुत स्ट्रेस दिया गया है। क्रिएटिविटी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग पे बहुत स्ट्रेस दिया गया है, क्योंकि अगर हमें सही में 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन के उभरना है, जो हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमको एक लक्ष्य दिया है अभी 15 अक्टूबर के उनके लाल किले के भाषण में, कि हमें 2047 में एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन के हमको आना है। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हमें हमारी आइडियाज जनरेट करनी, और ऐसी आइडियाज हमको जनरेट करनी पड़ेगी इस देश में जिसका रेलेवेंस सिर्फ हमारे देश में ना हो लेकिन पूरे दुनिया में। We have to impact the world. We have to create a generation which will ideate, which will innovate, and which will strive for excellence. And as a result, we will impact the world. जो हम हमेशा जगत गुरु होने की भी बात करते हैं। जगत गुरु यानी क्या? हमें नए विश्व को नए विचार देने, हमें विश्व को नई आइडियाज देनी, तभी तो हम जगत गुरु बन सकते हैं। और ये अगर होना है तो आइडिएशन और इनोवेशन के अलावा कोई दूसरा पर्याय नहीं है। लेकिन हम वैसे ही रोट लर्निंग सिस्टम्स में चल रहे हैं, वही स्वॉलो एंड वॉमिट मैकेनिज्म हम कर रहे हैं। अगर ऑनेस्टली पूछे कि बच्चे की आइडिया, न्यू आइडिया, क्रिएटिविटी कौन किल करता है, तो उसका जेन्युइन ऑनेस्ट आंसर यह है कि घर में माँ बाप या बड़े, और स्कूल और कॉलेज में शिक्षक, प्रोफेसर्स। क्योंकि कोई भी बच्चा कभी अच्छा सवाल पूछता है तो उसको पहले बता देता कि कितने मार्क्स आए बाबा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू, पास हुआ है क्या, या 80% 90% ना लाया है क्या, इधर उधर की बातें मत कर, पढ़ाई पे फोकस कर। ऐसा करके हम बच्चे की क्रिएटिविटी को सप्रेस कर दे। हमने रिसेंटली एक स्टडी किया स्टैनफोर्ड का, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया हमारे लिए, जहां स्टैनफोर्ड ने हमारे इंजीनियर्स जो है उनकी तुलना रशियन इंजीनियर्स और चाइनीज इंजीनियर्स से की, एसएलएस स्टडी जिसको हम कहते हैं। और हमने ये पाया कि हमारे जो इंजीनियर्स
उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्योंकि इंजीनियर का काम क्या है, प्रॉब्लम है अगर तो वो सॉल्व करने की, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है हमारे इंजीनियर्स की, वो चाइना और रशिया के प्रॉब्लम इंजीनियर्स से कम है। और उस स्टडी में हमें यह भी पता चला कि जब बच्चा 12वीं से इंजीनियरिंग में चला जाता है, तो अगर 12वीं के लेवल पे, 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे हम देखें तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी और भी कम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। यानी क्या अगर हम बच्चे को डेफिनेशन पूछे, वो तोते की तरह रट के बता देगा डेफिनेशन, लेकिन हम अगर उसको बोले कि ये डेफिनेशन अप्लाई करके तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो उसको नहीं जमता है। और आपने वो एक 3 इडियट नाम की मूवी में भी ये देखा होगा, कहना क्या चाहते हो, दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट? वो तो बहुत सारे मीम्स में अभी चल रहा है, अरे कहना क्या चाहते हो, क्योंकि वो तोते की तरह रटता है। तो ये हमको बदलना पड़ेगा। अगर ये हमको बदलना है, और हमारे सब मीन्स, मैं भी बहुत सारे शिक्षकों से बात करता हूं, उनकी इच्छा भी होती है, दे आर गुड ह्यूमन बीइंग्स, दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू आल्सो सपोर्ट, बट बहुत बार हमारे शिक्षकों को ये भी पता नहीं होता कि हम इसको आगे कैसे लेके जाए। टिंकरिंग लैब्स तो बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया बहुत सारे स्कूल्स में, एक आध बार ट्रेनिंग भी हो गया, लेकिन आगे क्या? एक आध ट्रेनिंग से तो कुछ इकोसिस्टम नहीं खड़ा होता है ना। तो हमने सोचा कि हम हमारे स्कूल्स को, हमारे शिक्षकों को जो सही में कुछ करना चाहते हैं, उनको हम कंटिन्यूअसली हैंड होल्ड करेंगे, कंटिन्यूअसली उनको मॉनिटर करेंगे, कंटिन्यूअसली उनको सपोर्ट करेंगे। वी विल मेक देम एज आवर चेंज एजेंट्स, ऑन ग्राउंड चेंज एजेंट्स। और अगर सही में किसी को अपने को ऑन ग्राउंड चेंज एजेंट बनाना है, तो हमें उसके साथ काम करना पड़ेगा, हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। और यही हम स्कूल इनोवेशन काउंसिल के माध्यम से करने की कोशिश करने वाले हैं। हम एक ये काउंसिल बनाएंगे जिसमें कुछ सीनियर शिक्षक रहेंगे, कुछ बच्चे भी रहेंगे, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंटली एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स रहेंगे। कोई एक्सपर्ट पेटेंट में की फील्ड में रहेगा, कोई बैंकिंग फाइनेंस के फील्ड में रहेगा, कोई आइडिएशन के फील्ड में रहेगा, एक आध दो एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे जिन्होंने स्टार्टअप की है। और ऐसी एक काउंसिल बना के, और हमको बहुत सारे ये लोग हमारे बच्चों के पेरेंट्स जो होंगे उनसे नहीं मिल जाएंगे, और कुछ जगह नहीं मिलेंगे जहां बहुत देहात में है, इंटीरियर में है, उनको हम सेंट्रली भी गाइड करेंगे। तो अगर आपको नहीं मिल रहे कोई लोग, तो आपको घबराने की कुछ जरूरत नहीं है, या आपको ये भी छोड़ देने की नहीं, हमको तो नहीं मिलता, हम नहीं कुछ करेंगे, नहीं, तब हम सेंट्रली आपको हेल्प करेंगे। तो एक ऐसी काउंसिल बनाएंगे जिसको हम स्कूल इनोवेशन काउंसिल कहते हैं। ये काउंसिल होने के बाद इस काउंसिल को हम एक मंथली एक्टिविटी देंगे कि बाबा आपको ये इस महीने में या इस 2 महीने में ये 2 एक्टिविटीज करनी है। तो एक मंथली एक्टिविटी रहेगी, आप आपके हिसाब से जब भी चाहो वो कर सकते हैं। और ऐसे 2 साल तक हम आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है, किस तरह से वो एक्टिविटी करनी है, उसका आउटकम क्या होना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे और हम आपके साथ काम करेंगे। और वो पूरा हमने एक पोर्टल भी डेवलप किया है, उसमें आपको पूरा डेटा भी सबमिट करना है कि आपने क्या एक्टिविटी की, कैसे, कुछ फोटोग्राफ्स, ज्यादा काम नहीं है, कुछ वीडियो लिंक्स ऐसे देने हैं। और हमने जब ये सब प्रोग्राम डिफाइन किया, ये
फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड है, ऐसा कहीं भी प्रोग्राम नहीं, हमने कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किया, पूरा हमने इवॉल्व किया है ये प्रोग्राम, एंड वी हैव इवॉल्व दिस प्रोग्राम based on our experience with IICs, Institutional Innovation Councils, which we have done for higher education. So हम 3 साल से जो हमारे कॉलेजेस हैं उनमें हम IICs, Institutional Innovation Councils हम ऑलरेडी चला रहे हैं। उसी धरती को, उसकी एक्सपीरियंस को हमने एक्स्ट्रापोलेट किया है और हमने ये स्कूल इनोवेशन काउंसिल का पूरा कंसेप्ट खड़ा किया। तो जब आप कुछ वर्कशॉप्स करेंगे, कुछ ट्रेनिंग सेशंस करेंगे, कुछ आइडिया कॉम्पिटिशंस करेंगे, कुछ प्रोटोटाइपिंग डेवलपमेंट कॉम्पिटिशंस करेंगे, ओके, हाँ, कुछ आईपीआर रिलेटेड यानी पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, उस रिलेटेड कुछ करेंगे, हाँ, देन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड कुछ करेंगे। ऐसा सब करके हमने एक बहुत ही अच्छा वेरी सिस्टमैटिक टाइम टेबल ही बना दिया है इस चीज का, कि पहले ये करना है, बाद में ये करना है, बाद में ये करना है, बाद में ये करना है, और उसके बाद आपको आप चौंक जाओगे या यू विल बी वेरी हैप्पी दैट at the end of 1 year, 1.5 years, when you will go through everything, you will have good ideas, good products, which are really new, innovative. And then हम सोचेंगे कि अगर वो गुड आइडिया अच्छा है, उसमें कोई स्टार्टअप पोटेंशियल है, तो उसको स्टार्टअप में कैसे कन्वर्ट करिए, उसको इंक्यूबेट कैसे करें, क्योंकि हमारी ये इच्छा है, हम ये मानते हैं कि हमारे यंग बच्चे और हमारे कुछ शिक्षक गण मिलके अगर कुछ अच्छा स्टार्टअप करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं खुद के लिए, खुद के स्कूल के लिए, खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो इवेंचुअली देश के लिए वेल्थ क्रिएट करे। और मोदी जी ने हमको जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो गोल दिया है, वो कैसे होगा अगर हम वेल्थ नहीं क्रिएट करेंगे। और वेल्थ अगर हमको क्रिएट करना है तो इनोवेशन ही है, न्यू आइडियाज पे काम करना है। और आपके पास बच्चे हैं जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकर्स है, तो हमको बच्चों से आइडियाज, हमारी आइडियाज लेके एक टीम बना के उस आइडियाज को सिस्टमैटिकली अगर हम नर्चर करते हैं, एंड देन उस आइडिया को अगर सही में बिजनेस पोटेंशियल है तो उसको एक स्टार्टअप में कन्वर्ट करते हैं, तो एक नया फील्ड या नया अप्रोच हमारे स्कूल्स में खुल जाएगा। और तब हमारे जो बच्चे हैं वो मार्क्स के पीछे नहीं लगेंगे कि मेरे को 60% मिले, 70% मिले, 90% मिले, 95% मिले, वो आइडियाज के पीछे लगेंगे। So what will happen is that our students and their parents and teachers will not chase marks and grades. They will start chasing ideas. They will start pursuing ideas, because they will realize that pursuing good ideas, new ideas, will fetch them far more benefit than pursuing just marks and grades. Okay? तो ये बड़ा स्कूल इनोवेशन काउंसिल का हमारा प्रोग्राम है। हम एक स्कूल इनोवेशन पॉलिसी पे भी काम कर रहे हैं, जो अभी पूजा मैडम जो हमारी है, जो इस कार्यक्रम को पूरा एंकर कर रही है, she is personally working along with Ellen and me to actually come up with a draft for school innovation policy. और उस पॉलिसी में हम बता रहे हैं कि अगर शिक्षक को, कोई किसी प्राध्यापक को स्टार्टअप करना है तो उसने क्या करना चाहिए, वो कितना समय दे सकता है, आईपी शेयरिंग कैसा हो, इक्विटी शेयरिंग कैसा हो, रेवेन्यू शेयरिंग कैसा हो, स्कूल्स कैसे सपोर्ट कर सकते हैं स्टार्टअप्स को, क्या क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं, अगर स्कूल इक्विटी होल्ड करना चाहता है स्टार्टअप में, शेयर्स लेना चाहता है स्टार्टअप में, तो वो कैसे ले,
इसके लिए पूरा एक अच्छा पॉलिसी लेके आए हैं, and you will see in next 1 month or so that policy will be out, because more or less 90% work has been done. Okay, क्योंकि हम आपको अनशैकल करना चाहते हैं, हम आपको जंजीरों में बांध के नहीं, आपकी जंजीरें तोड़ना चाहते हैं कि जहां आपको आपके आइडियाज पे काम करने के लिए खुली छूट मिले, उसको एक राइट फ्रेमवर्क हो जो आपको पता हो, और उस फ्रेमवर्क में अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत एक्सेल कर पाएंगे। तो इसी के लिए वो पॉलिसी भी आएंगे। देन हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चालू किया, जो एलन हो, डॉक्टर एलन गोवन जो अभी है हमारे साथ, या पंकज हो जो आपको एक प्रेजेंटेशन देंगे, अगेन पूजा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, स्कूल एम्बेसडर, इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। यानी क्या कि हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको हम ट्रेन कर रहे हैं। 5 मॉड्यूल्स है, 72 आवर्स का पूरा ट्रेनिंग है, वेरी एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग है, असेसमेंट है। अभी तक 13,000 स्कूल टीचर्स ने उस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है, एंड दे हैव पास्ड असेसमेंट, एंड 50% असेसमेंट है पासिंग का क्राइटेरिया। 50% राइट होना चाहिए, आपको 50% मार्क्स मिलने चाहिए। 13,000 लोगों ने अभी तक, 13,000 स्कूल टीचर ने एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया है। और मैं गोविंद जी से विनती करूंगा कि ये प्रोग्राम हमारे पूरे विद्या भारती के स्कूल्स में अगर हम स्प्रेड करते हैं तो हम उनको ट्रेनिंग करने के लिए रेडी है। और ये जो ट्रेन्ड लोग हैं वो इनोवेशन एम्बेसडर, जैसे मैंने कहा, ऑन ग्राउंड चेंज एजेंट्स जो होंगे वो होंगे। और जो ट्रेनिंग्स देते हैं उसमें क्या देते हैं, हम कौन से ट्रेनिंग्स देते हैं? बहुत बड़ा एक मॉड्यूल है डिजाइन थिंकिंग। आप सोचेंगे कि डिजाइन थिंकिंग क्या होता है, ये डिजाइन पेंटिंग या कुछ चित्र का ऐसा कुछ है? नहीं, डिजाइन थिंकिंग में यानी क्या, हाउ टू थिंक, इट्स अ मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग। विचार कैसे करना चाहिए, इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी। ओके, कि प्रॉब्लम को विजुअलाइज कैसे करें, और अगर हमें प्रॉब्लम पता हो गया तो उसके लिए सॉल्यूशन कैसे कंसेप्चुअलाइज करें, उसके लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा, कौन से कंसिडरेशंस देने पड़ेंगे, so that we can come up with a solution which is sustainable, which is implementable. ओके, तो ये एक बहुत बड़ा मॉड्यूल 25-26 घंटे का वही मॉड्यूल, और हम बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं उसमें कि कंपनीज ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने इनोवेशन, डिजाइन थिंकिंग यूज करके कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। अगर वो कमा सकते हैं एक सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी यूज करके, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो प्रॉब्लम्स का भंडार है भारत में, और उसको रॉकेट साइंस सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं है। अगर वो हम प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करें और उस पर सिस्टमैटिकली काम करें तो हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। सिर्फ भारत को नहीं, पूरी विश्व को सॉल्यूशंस दे सकते। तो हमें इस दिशा में अभी काम करना है। और जब रघुनंदन जी और गोविंद जी से हम मिले तो दे वर वेरी एक्साइटेड, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गोविंद जी इन दिस रिगार्ड। वो उन्हें कहा कि ये सब कंसेप्ट्स हमें विद्या भारती के स्कूल्स में लेके जाने हैं। हमारे स्कूल सबसे अच्छे स्कूल्स होने चाहिए। तो we were glad. We said that me and my team will be more than happy to handle schools, because you are more progressive, you are more forward looking than many of the other schools in attitude, in your approach. Okay, so
लेट्स मूव टू फॉरवर्ड. अभी पंकज आपको डेमो भी देगा, देन एलन भी अभी कुछ उसके ऊपर ज्यादा रोशनी डालेंगे, प्रोग्राम बाय प्रोग्राम, वो प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे. लेकिन जो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हम ये सब देखना है, हमको सिर्फ हमारे स्कूल्स के लिए या वो छोटे गांव, छोटा मेंढक जैसा अपने को नहीं सोचते हुए देश के लेवल पे अपने को सोचना है. और देश के लिए, जैसा पहले मोदी जी जब गुजरात में थे तो वो बोलते थे देश के विकास के लिए गुजरात का विकास. ओके, तो उन्होंने गुजरात के विकास को देश के विकास से जोड़ा. हमें भी वैसे ही करना है कि देश के विकास के लिए मेरा स्कूल क्या कर सकता, मेरा स्कूल कैसे नए आइडियाज दे सकता है, तो वो हमें अचीव करना है. और इसके लिए वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट हमारा जो स्कूल इनोवेशन काउंसिल प्रोग्राम है, हमारा इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारी जो इनोवेशन पॉलिसी आएंगी, हमारा जो कपिला प्रोग्राम है, वो आपको 100% हेल्प और सपोर्ट करेगा. सो मैं यहां रुकता हूं. मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सुना. और हम और बहुत सारे सेशंस करेंगे, क्योंकि ये तो पहला सेशन है जहां एंगेजमेंट चालू हो रहा है. अभी तो बहुत आगे टुगेदर वी विल होल्ड हैंड्स टुगेदर एंड वी विल वॉक ऑन दिस पाथ टुगेदर. So I will hand it over to Ellen and Pankaj for taking this program forward. Thanks for listening to me. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much. Namaskar. Thank you, sir. It's always amazing to listen to your words of wisdom and working under your guidance at Innovation Cell. Thank you for guiding these schools and briefing all of us about multiple initiatives that Ministry of Education Innovation Cell is taking right now. You have also briefed everyone about the genesis of School Innovation Council initiative and how it is actually connected to the national vision, and why it is very much crucial in light of the transformation which is currently happening in the education system. Very certainly, role of teachers is going to be very, very important, and the teachers and the school educators, principal, vice principal, and the all fraternity, all the school fraternity, their role is going to be very, very important. We wish to see active participation of all the schools in School Innovation Council, not only the SIC, but also our other ongoing programs, which we are doing from the Innovation Cell side. Thank you very much, sir, once again. Now I would request Dr. Aaron Gogan, sir, Assistant Innovation Director, Innovation Cell, and who is in charge to brief you about the journey so far and what we have been doing. And over to you, sir. Yeah. Thank you, Pooja, for introducing me to the participants. So it continues to Dr. Abhay Jare, sir, Chief Innovation Officer of Ministry of Education. I'll just give few highlights into few initiatives of Ministry of Education Innovation Cell. As sir briefed in detail, to promote the culture of innovation among the school education system, Ministry had launched School Innovation Council, School Innovation Ambassador Training Program, and National Innovation Entrepreneurship Promotion Policy, Smart India Hackathon for school kids, as well as design thinking and innovation subject. To just brief about the School Innovation Council, so the composition of School Innovation Council will be the chairman of the School Innovation Council will be the principal from the respective school as an executive representative, and the convener will be an active teacher at the senior level or vice principal level. Also, as we have teacher representatives like school innovation ambassadors who have been already trained through this innovation ambassador program, and 5 teachers who will be part of this teacher representatives who will actively take care of these initiatives which Ministry of Education Innovation is providing guidance to them.
And also, if a school exists with Atal Tinkering Lab, those teachers will be part of this teachers representative. And we will have a social media coordinator for supporting the students and the school for promoting these initiatives. And we will have a student representatives, the school captain, head boy and girl from the respective school, and 5 students. So we will also have in this council external expert members. They can be a successful entrepreneur or officers from nearby incubation and pre-incubation centers, IPR experts and senior industry experts who will be in the council, where regular meetings will be happening in the council, and they will be guiding and hand-holding you along with us to execute these programs of the School Innovation Council. So this is a 360-degree approach which we have planned through Ministry of Education Innovation Cell. Your slide is not shared. Can you please share that again? No? Okay. Just I'll share the slide. Just a minute. Yes, sir. It is coming up. Yeah. Just give me a minute. I'm trying to share the slide so that you will just get more clarity on what I've been discussing on. Yes. Pankaj, can you enable me the sharing option, Pankaj? Yes, sir. You are the presenter right now. Yeah, now it's Thank you, Pankaj. So I think the screen is visible, Pooja? Not yet. Yes, now it's visible. Yes. Is visible? Yes. Yeah. Okay. So this is what I'm discussing about the School Innovation Council with 360-degree of approach. Through the School Innovation Council, we will be hand-holding the school and the teachers and the students from the starting of motivation and innovation talk till the product development. So these are 360-degree. So we will have an orientation session on innovation, ideation, and entrepreneurship. As the schools, the teachers will be registering for School Innovation Ambassador Training Program, and we'll be conducting workshops on ideation, innovation, and problem solving for teachers and the student, and we'll be hand-holding them and conducting programs on design thinking and skill courses. After creating a foundation of and basic awareness for the teachers and students, we will guide them to make a field visit for the students to the nearby centers, higher education institutions, science labs, and center of excellences. So as a part of NEP, we have a bagless week. So this will be part of this particular program. And from there, we will take on them and guiding the ideation challenge, then develop a proof of concept, prototyping, help them in business development model. Then we'll be participating in the national exhibition, and you will be at last starting an incubate, say, startup. So this complete process will be a handhold through our innovation council, and those activities will be carried out by you, and you will be updating the reports on the council. This is the portal, how it looks. My colleague Pankaj will be demonstrating to you. As my Chief Innovation Officer, Dr. Abhay Jare sir said, with the success of the establishing the School Innovation Council, nearly 4,000 plus higher education institution, we have been conducting innovation entrepreneurship activities, and we have touched few lakhs of students and teachers in creating this awareness about innovation. With the success of this, we have launched the School Innovation Council. We have launched the School Innovation Ambassador Training Program on 16 July. As we said, we have 5 modules: design thinking, innovation, idea generation and hand-holding, entrepreneurship, prototype, product development, IPR, finance, sales, and HR. This will be a 72-hour module. It's an online. Once a teacher can log in, register themselves, then carry out this program, and they can submit their assessment. Once they get 50% mark, they get
eligible to be a Ministry of Education Innovation Innovation Ambassador. So far, we want to convey you that more than Sir, 13,000 please teachers across the country had successfully completed from 11,000 plus schools. We also have onboarded with us Ministry of Tribal Affairs schools, Kendriya Vidyalayas, Jawahar Navodaya School, and we have 86 schools from out of India. So these are complete. We covered the complete landscape or length and breadth of our country. So all the states and union territories, students and teachers have been registered for this program, and they have been successfully carrying out. So around 13,000 plus teachers. This is a map which our students and teachers have been participating in this program. So also want to convey you that the national policy for promoting innovation in school education has been launched in July. So through this program, we are trying to change the mindset change, awareness and training for the students, teachers, as well as the parents. And we are trying to create the pillar of infrastructure and mentoring to nurture innovation. And we want to incentivize and encourage teachers who are actively participating in this entrepreneurship and innovation program and pedagogical innovation and collaborate partnership, school community and with higher education institutions and center of excellence and school entrepreneurs-led startup facility and IP is what we are trying to do. Because the school innovation policy was launched by our Honorable Home Minister. So also want to convey you that we are the first country in the world to launch design thinking and innovation subject. So we have already launched for 6th standard students, and we are planning to launch from 7th to 12th by October, November. So we also conduct a train the trainer program for the teachers on design thinking and innovation. So far we have conducted at 4 locations. We plan to conduct on 17th September in Chennai and 24th September in Mumbai. Interested teachers can write to us and register with us. Also, we have been conducting Smart India hackathons for junior students, and many students across the country have been participated, and we have a few lakh students been successfully participating so far. What we are trying to do and what were we trying to build up through the School Innovation Council and School Innovation Ambassador, we are trying to building grassroots innovation entrepreneurship ecosystem, consolidating the facilities and resources in the schools and higher education system. We want to support from idea to startup, and we want to create many unicorn and MNC of tomorrow for our country. So what we'll be achieving, what we are trying to achieve is be a part of Atmanirbhar Bharat, Make in India, Made for the World, knowledge-based economy, and a goal for $5 trillion of economy, which we are trying to do that. And entrepreneurs from school will make many more such initiatives to achieve. The school, the global, if you see to it, in the Global Innovation Index, in 2015, we were standing at 81st position, today at 46th position. Every individual, student, teacher, school, at the state to state level, together as a nation, we will be able to make our country to stand in the better position, the Global Innovation Index in the coming years. With this small brief, I request everyone to be part of this School Innovation Council and SITP program and promote the culture of innovation among your schools and make sure that we make our country proud. We have our coordinators at the regional level. Our officers are there to support you at any point of time and guide you and handhold you. With this small brief, I thank everyone for wholeheartedly on behalf of Ministry of Education, Innovation Cell, AICT and CBSE and Vidya Bharati School for joining this program. So now I request my colleague, Mr. Pankaj Pandey, to give a demo on the portal. Mr. Pankaj, I request you to give on the demo on the portal of School Innovation Ambassador Training Program and School Innovation Council, how to register on the portal. If you have any doubts, we will take question and answer after this session. Mr. Pankaj, Thank you so much, you can have a question and answer session. Sure, sir. Thank you so much. Sorry. सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में। एलंगोवन सर एंड जेरे सर ने आप सभी को बताया कि हम क्या प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं और क्या प्रोग्राम से बदलाव आएगा स्कूलों में। मैं इन्हीं दोनों प्रोग्राम को आगे लेकर जाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इन 2 वेबसाइट्स पर रजिस्टर कर सकते हैं। 2 वेबसाइट है, एक स्कूल इनोवेशन काउंसिल का प्रोग्राम
और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, वो है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां पर टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ये प्रोग्राम आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्कूल इनोवेशन काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा किया जाना है। वो आपके स्कूल से कुछ अध्यापकों को नॉमिनेट करेंगे इस प्रोग्राम के लिए, जहां पर इनोवेशन एम्बेसडर्स की ट्रेनिंग होगी। आई टेक यू थ्रू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कि रजिस्टर कैसे करना है स्कूल इनोवेशन काउंसिल की वेबसाइट पर। आप हमारी वेबसाइट है sic.mic.gov.in, आप इस पर जाएं, इस डोमेन पे जाएं, वहां पर आप इस पेज को देख पाएंगे, वेलकम टू स्कूल इनोवेशन काउंसिल। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको दो टैब दिखाई देंगे, न्यू स्कूल रजिस्ट्रेशन और स्कूल लॉगिन। ये दोनों ही टैब आपको लॉगिन प्रोवाइड करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड प्रोग्राम है स्कूल इनोवेशन काउंसिल, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो आपको सीधे जाके लॉगिन करना है स्कूल लॉगिन के माध्यम से, जहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग SIC लॉगिन। इसके माध्यम से आपको लॉगिन करना है और आप लॉगिन कर पाएंगे अपने स्पॉक के ईमेल से। जो भी आपने अकाउंट जब SIA की वेबसाइट पे क्रिएट किया होगा, इनोवेशन एम्बेसडर की वेबसाइट पे जब आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा, उस ईमेल ID से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लेकिन अगर आपने वो प्रोग्राम पहले नहीं से आप पहले जुड़े नहीं रहे, अगर आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं किया हुआ है, तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा न्यू स्कूल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके। न्यू स्कूल रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करेंगे तो आप अगला पेज देखेंगे। जब आप उस बटन पे क्लिक करेंगे स्कूल इनोवेशन काउंसिल के पेज पे जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन पे, तो आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पे आपको कुछ चीजें हमें प्रोवाइड करनी है, जिसके बेसिस पे आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। आपको सबसे पहले अपने बोर्ड का चयन करना है कि आप किस बोर्ड से हैं, CBSE से हैं, ICSE से हैं या किसी स्टेट बोर्ड से हैं। उसके बाद ही आप आगे स्कूल का नाम डालेंगे, स्कूल का एफिलिएशन नंबर डालेंगे, कंट्री आपको सेलेक्ट करना है, प्री सिलेक्टेड रहेगा वहाँ पे। अगेन स्टेट की जानकारी देनी, कहाँ से आप हैं, किस जगह से हैं, उस जो भी जानकारी यहाँ पर पूछी गई है उन सभी जानकारियों को आपको देना है। 4 तरह की बेसिक जानकारियां हैं, स्कूल डिटेल्स हैं, ये सब। Abhay sir want to speak to everyone, so I am just unmuting sir. Yes sir, can you hear me? Abhay sir, can you hear me? I can hear you. Yes, See, sir. I would like to take this opportunity to inform all the teachers that we have a special Telegram group for Innovation Ambassador Training Program. Okay. So Ellen and Pankaj, what you should do is that you should paste all the important links in the chat window. Okay, sir. Okay, related to Telegram, related to your IICs, Innovation Ambassador Training Program, so that everyone should able to copy easily those links and they will not make mistakes. ठीक है sir. Okay. ठीक है sir. While you are explaining, you start even copying the links in chat section and I will request all to check the chat section where Sure, you sir. will find all the links. And do join our Telegram group immediately and circulate it amongst all your friends so that we will able to handle you in much more systematic fashion. ठीक है सर, धन्यवाद। लोगों को शायद पता होगा टेलीग्राम क्या है, वो एक व्हाट्सएप जैसा ही है, उस पे एक बड़ा चैनल खोल सकते हैं, तो हमने खोला है, तो आप वो देखो थोड़ा सा। ठीक है, तो जो जैसे सर ने कहा हम एक लिंक पेस्ट करेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। टेलीग्राम पे है, वहां पर आपसे मैसेज का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सो आई स्टार्ट प्रेजेंटिंग अगेन व्हाट स्कूल इनोवेशन काउंसिल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लुक्स लाइक। यहाँ पर आपको 4 चीजें प्रोवाइड करनी है, स्कूल की डिटेल देनी है, कॉन्टेक्ट डिटेल देनी है जिनके माध्यम से हम आपसे संपर्क कर सकते हैं, प्रिंसिपल की डिटेल देनी है क्योंकि वो इस काउंसिल का हेड होगा, दैट विल बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, और साथ में ही एक अंडरटेकिंग फॉर्म देना है आपको स्कूल के लेटर हेड पे। ये अंडरटेकिंग फॉर्म आपको इसी रजिस्ट्रेशन पेज पे मिल जाएगा, इसका फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करेंगे, उसको स्कूल के लेटर हेड पे प्रिंट करेंगे, प्रिंसिपल उसको साइन करेंगे
और वापस से आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान उसको अपलोड करना है। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको एक ईमेल आईडी देना है। ये ईमेल आईडी जब आप प्रोवाइड करेंगे तो भविष्य के जितने भी कम्युनिकेशन होने वाले हैं, जितने भी संचार हम आपके साथ स्थापित करेंगे, इस ईमेल के माध्यम से करेंगे। इस ईमेल को आपको वेरीफाई करना है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो रजिस्ट्रेशन जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन काम नहीं करेगा। आप यहाँ पे ईमेल आईडी प्रिंसिपल का या स्कूल का एंटर करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगा तुरंत। वहाँ पे एक कोड आपको 4 अंकों का रिसीव होगा, उस कोड को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और बाकी फिर डिटेल भरते हुए आप उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि अंडरटेकिंग बाय द स्कूल, यहाँ पर आपको वो अंडरटेकिंग फिर से अपलोड करनी है। साथ में ही ये फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट में अपलोड करना है। ये बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। अब एक बार आप रजिस्ट्रेशन जब कर लेंगे तो स्कूल लॉगिन में जाके आपने जो पासवर्ड डाला था वहां पे, उस पासवर्ड के साथ में लॉग इन कर पाएंगे। जब आप लॉग इन करेंगे तो पहली बार आप इस पेज पे आएंगे जहां पर आपके स्कूल का पूरा प्रोफाइल दिया गया होगा। आपको अगर कोई डिटेल आप उस टाइम पे नहीं भर पाए तो वो यहाँ पे आप वापस एडिट स्कूल डिटेल पे जाके फिल कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे एक अपलोड लोगो का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप अपने स्कूल का जो भी लोगो है या आपकी संस्थान का एक कॉमन लोगो है वो यहाँ पर जाके अपलोड करना है। जब एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फिर आप माई काउंसिल बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से काउंसिल का स्वरूप दिखाई देगा। जैसा कि जेरे सर ने भी बताया और एलन सर ने भी रेखांकित किया था कि आपको ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना जहां पर कई सारे मेंबर्स की डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इसमें 2 तरह के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, एक तो कन्वेनर होंगे जो संचालन करेंगे इस पूरे स्कूल इनोवेशन काउंसिल का, साथ ही इस काउंसिल के चेयरमैन के रूप में प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल हो सकते हैं जिनको आपको यहाँ पे रजिस्टर करना। उनकी डिटेल्स आपको देनी, जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक डिटेल पूछी जाएंगी। आप अगले फॉर्म पे देख सकते हैं कि अपडेट चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म दिखाई देगा कि नाम बताना है, ईमेल बताना है, अगेन कॉन्टेक्ट नंबर एंड बेसिक डिटेल्स हैं यहाँ पर, ये सारे ये आपको देनी। सिमिलरली आपको टीचर्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी यहाँ पर अपडेट करना है। यहाँ पर जो टीचर्स मुख्य रूप से जो इनोवेशन एम्बेसडर्स होंगे स्कूल के, वो या फिर अन्य टीचर जिनको प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल महत्वपूर्ण समझते हैं कि उस तरह के कार्यों को कर सकते हैं जो स्कूल इनोवेशन काउंसिल के अंडर कराए जाने हैं पूरे साल, उन टीचर्स को नॉमिनेट करना है। और वो बहुत सारी एक्टिविटी जो साल में होनी है, साल में उन सभी को मैनेज करेंगे। साथ में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन में स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल या जो भी इलेक्टेड या सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको नॉमिनेट करना है। एक्सपर्ट में अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इस सभी चीजों की जानकारी जब आप स्कूल इनोवेशन काउंसिल की वेबसाइट पे जाएंगे वहां पर दी गई हुई है कि क्या क्या सबकी ड्यूटीज है, क्या करना है, किस किस को नॉमिनेट करना है। तो मैं एक बार कहूंगा कि आप वहां पे जाएं और उस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़े। 9 पेज का डॉक्यूमेंट है, काफी डिटेल में लिखा हुआ है कि क्या कैसे और कहाँ करना है। उसको आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि किस किस को नॉमिनेट करना है, कौन क्रेडिबल है इस चीज के लिए और एक्सपर्ट रिप्रेजेंटेशन में कौन आएगा। अब सर ने बात की थी कि इनोवेशन एम्बेसडर्स की, जिसके साथ हम शुरुआत करेंगे। अब इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम में जो भी टीचर्स इस प्रोग्राम को करेंगे या पूरा करेंगे उनकी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे लिस्ट हो जाएगी, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगेन सेम आपको डिटेल्स कन्वीनर के लिए भी देनी, तो वो सारे जो चारों रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन चारों कॉलम्स को आपको पूरा करना है। एक बार ये पूरा कर लेंगे तो एक कैलेंडर बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल ने, जो आपको फॉलो करना है। इसमें 12 एक्टिविटीज हैं, उन 12 एक्टिविटीज को हर महीने एक एक्टिविटी के रूप में करना है और उसकी रिपोर्ट इसी पे सबमिट करनी है। जब आप इस एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो एक रिपोर्ट का फॉर्मेट खुल जाएगा। आपको वहाँ पे जो बेसिक डिटेल पूछी है, कितने लोगों ने इसको ज्वाइन किया हुआ है, कितने बच्चों ने प्रोग्राम्स को ज्वाइन किया हुआ है, वो सारी चीजें आपको देनी है और सबमिट कर देना है। साथ ही 2 फोटोग्राफ्स, ताकि ये पता लगे कि आपने सही से इस प्रोग्राम को किया हुआ है और जो दावा आप कर रहे हैं कितने बच्चों या टीचर्स ने ज्वाइन किया है वो उससे वेरीफाई हो सके। इस स्वरूप में आपको वो सारी रिपोर्ट्स हमें सबमिट करनी होगी हर एक प्रोग्राम की, हर महीने के एंड। किसी के बेस पे भविष्य में स्कूल की रैंकिंग्स भी होगी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो भी प्रयोग आप कर रहे हैं अपने स्कूल स्तर पर, उस तरीके से हम इसको इस रैंकिंग सिस्टम में भी लेके आएंगे। एक स्टार रेटिंग भी दी जाएगी सारे स्कूल्स को। अब इसके बाद हम इसी स्कूल इनोवेशन काउंसिल का एक हिस्सा है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसकी वेबसाइट अलग है। यहाँ इस वेबसाइट पर मुख्य रूप से आपको जो 5 ट्रेनिंग मॉडल जिनकी बात सर ने की थी, डिजाइन थिंकिंग, आईपीआर, आइडिया जनरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, सेल्स एंड एचआर, ये सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे उपलब्ध हैं।
यहाँ पर सिर्फ इतना करना है कि जब स्कूल का प्रिंसिपल आपको नॉमिनेट करेगा तो जिस ईमेल के साथ वो आपको नॉमिनेट करेंगे उस ईमेल के साथ आपको आना है इस वेबसाइट पर। टीचर्स लॉगिन जो दिया है, टीचर्स लॉगिन में जाके आप अपने उस ईमेल को एंटर करेंगे और इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है। तो जब वो डॉक्यूमेंट मैंने आपको पढ़ने को बोला आप उसको पढ़ेंगे, वहां पे वो दिया गया है कि क्या पासवर्ड है। मैं आपको बता भी देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं इसको। पासवर्ड है SITP@2021। मैं चैट में भी इसको डाल दे रहा हूँ सो दैट यू कैन कॉपी इट। अगर आपने उस रजिस्टर्ड ईमेल को यहाँ पर डालेंगे, इस पासवर्ड को डालेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे इस वेबसाइट पर। एक बार आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको ये वाला पेज दिखाई देगा। इस पेज पे क्या है, यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स दी होंगी। जैसे ही आप नॉमिनेट होते हैं, लॉगिन करते हैं, आपकी एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाती है जिसको हम SIE आईडी के नाम से बोलते हैं। आपका स्कूल जब रजिस्टर करता है उसकी यूनिक आईडी, उसको हम SIC आईडी कहते हैं। तो ये यूनिक आईडी हम यूज करते हैं ताकि आपको थ्रू आउट प्रोग्राम आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके और आपको सर्टिफिकेट बाद में इशू कर सके। आप साइड में देख पा रहे होंगे 5 मॉड्यूल है। जैसे जैसे आप इन पे क्लिक करेंगे आपको एक वीडियो आएगा सामने, उस वीडियो को आपको देखना है और उसके उपरांत आपको एक पोस्ट असेसमेंट है उसको कंप्लीट करना है। सिंपल से 25 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने हैं उसको पास करने के लिए। तो ये आप जब इसको कर लेंगे, सबमिट कर देंगे, जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स दिख जाएंगे। और आप अगर 50% से ऊपर लाते हैं तो आपको क्वालिफाइड दिख जाएगा, उससे कम लाएंगे तो नॉट क्वालिफाइड है। नॉट क्वालिफाइड के केस में आप फिर से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और जो गलती आपने पहले करी उसके बाद आप उसको सुधार करके ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं और इसको पास कर सकते हैं। ये जब 5 मॉड्यूल आप पूरा कर लेंगे इस बताए हुए तरीके से, तब एक इनोवेशन एम्बेसडर का सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री की तरफ से आपको इशू होगा। ये सर्टिफिकेट इनोवेशन एम्बेसडर का होता है। ये तभी आपको मिलेगा जब आप 5 मॉड्यूल को 50% के साथ पूरा कर लेंगे। और बिलीव मी 50% मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आप अगर सही से वीडियो देखेंगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ वीडियोस दिखाई देंगे, आप वॉच पे क्लिक करेंगे एंड यू विल बी एबल टू सी द वीडियोस आल्सो। अभी जैसे सर ने कहा कि सारे देश को हमने 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। रीजन के रूप में हम इनको पहचानते हैं। रीजन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से स्टेट को कौन से हमारे ऑफिसर हैंडल करते हैं। आपकी जो भी समस्याएं, जो भी शंकाएं हैं, आप उनको इस ईमेल पे भी हमें भेज सकते हैं और इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये सारी डिटेल स्कूल इनोवेशन काउंसिल और स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर की वेबसाइट पर भी दी गई है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। With this, I would like to thank each and everyone who are present here, and we are looking forward for your schools to register for School Innovation Council and to register for School Innovation Ambassador Training Program. आप अपने सभी अध्यापकों को नॉमिनेट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कितनों को आप नॉमिनेट कर सकते हैं। आप सभी टीचर्स जो इंटरेस्टेड है उनको नॉमिनेट करिए, सभी के सभी ट्रेनिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू पूजा। Dr. Pooja, can you hear me? I guess we can take questions or any kind of queries. If any of the teacher, if they have any query, they may share. अभी हम आप सभी के जितने भी शंकाएं हैं उनके समाधान के लिए अगले आधे घंटे तक आपके प्रश्न लेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, आप अगर नीचे देख पा रहे होंगे एक हाथ जैसा निशान बना हुआ है, रेज हैंड करके लिखा है, उसको क्लिक करेंगे तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे और फिर आप अपना क्वेश्चन एक बाई एक करके पूछ सकते हैं। हम उसका एक एक करके आपको जवाब भी दे देंगे। तो जिनको भी प्रश्न पूछना है अपना हाथ रेज करेंगे, मैं उनका नाम बोलूंगा और साथ में उनको अनम्यूट करूंगा और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आदित्य कुमार जी, हाँ जी बताएं आपका क्या प्रश्न है। हाँ सर, कहना था कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपने जो कहा था टीचर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको जरा एक बार फिर से थोड़ा बता दें। मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, ठीक है? जस्ट जी सर। आप देख पा रहे हैं एक वेब पेज ओपन हुआ है। हाँ, ये वेबसाइट है sic.mic.gov.in, ठीक है? ये डोमेन मैंने शुरू में चैट के जब प्रोग्राम शुरू हुआ था मैंने कॉपी करके डाल दिया था, फिर से इसको चैट में डाल दूंगा। आप इस पे क्लिक करें, ठीक है? तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज बटन बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म दिखाई देगा, ठीक है? जो भी डिटेल यहाँ पे मांगी गई आप एक एक करके भर दीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अंडरटेकिंग के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है?
और फिर जी आप हाँ। वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ कैसा दिखाई देता है। ये मेरा डमी अकाउंट है। जब मैं इस पे लॉगिन करूंगा तो आपको, जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, आपको इस तरह का एक दृश्य अपने स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसमें माई काउंसिल है, माई प्रोफाइल है, एक्टिविटी कैलेंडर है। तो अगर आप कोई चीज़ रजिस्ट्रेशन में भूल गए या कुछ अपडेट आपको करना है तो माई प्रोफाइल पे जाइए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल का प्रोफाइल दिखाई देगा। जो डिटेल्स रह गई हैं आप उनको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट स्कूल डिटेल पे क्लिक करके सेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा। आपको जो भी डिटेल अपडेट करनी है आप यहाँ पे जाके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके ये बेसिक रजिस्ट्रेशन है स्कूल इनोवेशन काउंसिल का। नॉमिनेशन कहाँ पे होना है सभी की जानकारी के लिए फिर से दिखा दे रहा हूँ एक बार। एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेशन पे मैनेज पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, ऐड कन्वीनर, एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर। आप सिंपली इस पे जाके क्लिक करें और जो भी डिटेल्स आपको देनी है ऊपर उपयुक्त पर्सन की आप डिटेल्स वहाँ पे इंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। सारा डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। सर टेलीग्राम लिंक थोड़ा दे देते तो सुविधा होती। टेलीग्राम लिंक चैट में डाल देंगे, थोड़ा सा समय दीजिए उसके लिए। ठीक है, ओके ओके, थैंक Dr. यू। Sonal, can you please share the link in the chat box for this Telegram group? इसी के साथ मैं आपको एसआईए की वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, जहाँ पर एक बार आप स्कूल में अपने गुरुजनों को नॉमिनेट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आके आपको लॉगिन करना है। ये टीचर्स लॉगिन है। ये यहाँ पर भी मेरा अकाउंट मैंने जो बना रखा है दिखाने के लिए, मैं उसके माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। एक बार आप लॉगिन करेंगे तो जैसे मैं स्लाइड में आपको दिखाया था, ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारे नीचे मॉड्यूल्स दिए गए हैं। 5 मॉड्यूल पे ट्रेनिंग होनी है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। आप एक करके इनको कंप्लीट करेंगे। आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेशंस दिखाई देंगे। ठीक है, इन सारे टॉपिक को इसमें 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक के वीडियोज हैं, छोटे छोटे वीडियोज हैं, काफ़ी डिटेल में, काफ़ी कहानियों के साथ में समझाया गया है। आप उनको एक बार देखें और देखने के बाद पोस्ट असेसमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, जी सर। क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे और इन सबको करने के बाद आप एंड में सबमिट कर देंगे तो आपका वो मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सर इसका यूट्यूब लिंक भी मिलेगा क्या? यूट्यूब वीडियो पे जो देख सकते हैं इसको। देखिए ये सारे वीडियोस जो हैं ये सब यूट्यूब वीडियोस ही हैं। आप एक बार वॉच पे क्लिक करेंगे जब तो एक जी विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये सारे ये यूट्यूब है। आप चाहें तो इसको यहीं पे देख सकते ओके हैं। अगर आपको यूट्यूब पे जाके देखना है तो नीचे यूट्यूब लिखा रहता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यूट्यूब पे लेके जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो यूट्यूब पे लेके जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे जी इसको सर। आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ओके, लाइक थैंक यू। दिस। थैंक यू। प्रकाश चंद्र पनवर, प्रकाश जी अपना प्रश्न पूछें। प्रकाश जी आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, क्या आप फिर से एक बार प्रश्न पूछेंगे अपना? प्रकाश जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। आप एक काम करिए प्रकाश जी, आप अपने प्रश्न को चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं वहां से आपको पढ़ के जवाब दे दूंगा। ठीक है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही सही से। भाई सर आपने हाथ रेज किया, कुछ एड्रेस करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज देवी प्रसाद नोटियाल। जी सर नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें जो हमारी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं इनके लिए और अपने को रजिस्टर्ड करने के लिए कोई डेट है क्या निर्धारित, उसके बाद या वो नहीं कर सकते हैं या उससे पहले नहीं? बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोग्राम पिछले 1 साल से चल रहा हुआ है। मॉड्यूल कंप्लीट करने की अवधि के लिए आपको 2 महीने का वक्त मिलता है। ये 72 घंटे का ट्रेनिंग है। आपको 2 महीने के अंदर इसको पूरा करना है। जिस दिन से आपका स्कूल आपको नॉमिनेट कर देगा उस दिन से लेके 2 महीने तक। ठीक है, ठीक सर, ठीक। तो जल्दी से जल्दी अपने ठीक है सर। अगर आप प्रिंसिपल हैं तो अपने स्कूल से जी सर। अध्यापकों को नॉमिनेट करें या फिर अपने स्कूल को बोले वहाँ यानी पे हम नॉमिनेट करें। हम आज रजिस्टर करेंगे तो इसके 2 महीने तक हमको ही कंप्लीट करना पड़ेगा। जी, 2 महीने के अंदर आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू। रूबी अग्रवाल जी।
रूबी अग्रवाल जी प्लीज अपना प्रश्न पूछें, प्लीज आस्क क्वेश्चन। सर हम ये पूछना चाह रहे थे कि ये जो भी हमें पूरे चैनल पे हमें अगर जो भी पूरा प्रोसेस का लॉगिन करने का, नॉमिनेट करने का, इसके लिए असिस्टेंस हमें यूट्यूब से मिल सकता है? नहीं देखिए, यूट्यूब पे जो भी वीडियोस हैं ट्रेनिंग के वो सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, बट आपको लॉगिन यहाँ पे करना है क्योंकि हम आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं कि आपने सही में वीडियो देखा है और आपने असेसमेंट कंप्लीट किया है या नहीं। ठीक है, तो आपको लॉगिन इसी वेबसाइट पे करना होगा और वहां से फिर आप देखने के लिए यूट्यूब पे क्लिक करके यूट्यूब पे देख सकते हैं अगर वो इजी रहता है आपके लिए। ओके, इट मींस लॉगिन जो होगा हमें प्लेटफॉर्म पे करना होगा, जो SIA का प्लेटफॉर्म है वहां करना होगा, एंड जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो हम यूट्यूब के थ्रू भी फिनिश कर सकते हैं। Yes, you understood it right. You have to log in to the portal and then see. एक मेरा क्वेरी और था, ये जो लॉगिन प्रोसेस है किस तरीके से हमें इस पूरे प्रोसेस को, इस मॉड्यूल को ज्वाइन करना है, स्टार्ट करना है, अगर उसके लिए हमें असिस्टेंस चाहिए तो वो हमें यूट्यूब पर मिल सकता है? देखिए, असिस्टेंस के लिए सबसे अच्छे तरीके से आई हैव गिवन पोर्टल मैनुअल। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो जस्ट गो टू द SIA वेबसाइट, go to help section, click on portal manual. A step-wise guideline is given over there. What you have to do, where you have to do, and how you have to nominate, register, and attend the training. Okay? Please follow this. Although there are videos also on the YouTube, how that will be guiding you how you need to attend this training program. Okay? That too you can find under the help section or under the gallery. So the videos are there. Same is the case for SIC website also. You go on SIC website. There is one tab called user manual. Okay, just click on user manual and follow this step-wise guide. You will be able to understand each and every step how you have to register on the SIC website and how you have to establish the School Innovation Council. Okay, but if still you are having any question or query, you can always write to us on the contact us page. That too you can see here. There is a tag given on the website, contact, and you can see the details of the regional officers. Okay, thank you so much. Yeah, those who are having queries, please raise your hand. I'll call your name and then we can go with the question. Saraswati Vidya Mandir. Saraswati Vidya Mandir, Inter College, Sitarganj. Please ask a question. सरस्वती विद्या मंदिर सितारगंज। ओके, नेक्स्ट इज बीरेंद्र कुमार। हरिओम श्रीमान। हरिओम, बताइए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें रजिस्ट्रेशन सभी विद्यालयों का होना है या फिर जो अफिलिएटेड हैं CBSE से अथवा बिहार बोर्ड से? बिहार से मैं हूँ। इसमें सभी विद्यालयों का होना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, ये किसी बोर्ड के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसीलिए मैंने आपको जब प्रेजेंटेशन दिखाया तो उसमें सबसे पहले आपको बोर्ड ही सिलेक्ट करना है कि आप स्टेट बोर्ड से हैं, CBSE से हैं या किसी अन्य बोर्ड से हैं। ठीक है, तो ये सभी बोर्ड के लिए है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इस प्रोग्राम का एम है कि तदनंतर में सभी विद्यालयों में टीचर्स को इन 5 मॉड्यूल्स पे ट्रेन करना है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी बोर्ड के लिए। ओनली फॉर मैंने ये केवल जो पंजीकृत विद्यालय है या फिर मान्यता प्राप्त विद्यालय है वही ले सकते हैं इसमें? एग्जैक्टली, आपने स्कूल इस्टेब्लिश किया होगा तो किसी न किसी विद्यालय बोर्ड से आपने मान्यता ली होगी। वो मान्यता चाहे आपकी जिस भी स्तर तक हो, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। आपको बस मान्यता का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो डालना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, फिर आप रजिस्टर कर पाएंगे और नॉमिनेट कर पाएंगे टीचर्स को, एंड देन यू कैन आस्क योर टीचर्स टू अटेंड द ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली। जी बहुत बहुत धन्यवाद। Next is Divyanshu. Sir, it will be in which language? This is primarily in English right now. English में ही available है। Sir, can students register it? स्टूडेंट रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट को स्कूल इनोवेशन काउंसिल में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के रिप्रेजेंटेशन के अंदर उनको रजिस्टर करना है। ठीक है, वो भी स्कूल के कैप्टन या हेड बॉय हेड गर्ल को, और साथ में अगर प्रिंसिपल को लगता है कि अन्य विद्यार्थियों को भी करना चाहिए प्रोग्राम हैंडल करने के लिए,
तो उनको रजिस्टर कर सकते हैं। बट इस ट्रेनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही रजिस्टर कर सकते हैं। सर लाइव टू लाइव सर बच्चों के लिए आगे हम कई सारे प्रोग्राम लेके आएंगे। जब आप स्कूल इनोवेशन काउंसिल की गाइडलाइन देखेंगे, वहाँ पे एक कैलेंडर दिया हुआ है, आप उसमें देखेंगे, उसमें जो भी एक्टिविटीज हैं वो बच्चों के लिए ही है। तो स्कूल इनोवेशन काउंसिल के अंडर जो प्रोग्राम होंगे बच्चों के लिए हैं, लेकिन जो इनोवेशन एम्बेसडर की ट्रेनिंग है वो सिर्फ शिक्षकों के लिए है। सर ये ऑफलाइन होगी कभी लाइव टू लाइव इंटरेक्शन? देखिए वो अन्य प्रोग्राम है। ये स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम के 5 मॉड्यूल जो है वर्चुअल है, क्योंकि हमें देश के हर कोने में जल्दी से जल्दी पहुंचना है। फिजिकली हम इसको नहीं कर सकते इतने बड़े स्केल पे, इसलिए वर्चुअल ही रहेगा। लेकिन अन्य कई सारे प्रोग्राम स्कूल इनोवेशन काउंसिल के अंडर में ऑफलाइन होंगे, फिजिकल भी होंगे। और जैसे एक प्रोग्राम हमारा अभी चल भी रहा है कि डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन पे, तो सीबीएसई ने एक स्किल मॉड्यूल तैयार किया हुआ है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है शिक्षकों की। वो फिजिकल रूप से ही हो रही है। वो हमारे ऑफिसर्स और कुछ आईआईटी बॉम्बे के सीनियर प्रोफेसर जाते हैं, वो शिक्षकों को ट्रेन करते हैं। कुछ प्रोग्राम ऑफलाइन होंगे, कुछ ऑनलाइन होंगे, लेकिन ये इनोवेशन एम्बेसडर की जो ट्रेनिंग है ये पूरी की पूरी ऑनलाइन है। आप किसी भी टाइम अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से देख सकते हैं। सर इसकी टाइमलाइन क्या रहेगी प्रोग्राम की? ये सेल्फ पेस्ड है। जैसा कि मैंने कहा, आपको जिस दिन से रजिस्टर आप हो जाएंगे फिर 2 महीने का वक्त मिलेगा। उस 2 महीने में आप कभी भी 72 घंटे का टाइम निकाल के कर सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन में 10 घंटे कर सकते हैं, आप चाहें तो एक दिन में 1 घंटा करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके थैंक यू। सरस्वती विद्या मंदिर सितारगंज। किसी और का अगर कोई प्रश्न है प्लीज रेज योर हैंड, आई कॉल योर नेम एंड आई अनम्यूट यू, तब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आरबी दीक्षित जी। नमस्ते। नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि स्कूल रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या टीचर्स को डायरेक्ट भी रजिस्टर हो सकते हैं प्रिंसिपल से अथराइज लेटर लेकर? जी अभी जो है आपको स्कूल रजिस्ट्रेशन पहले करना है, फिर वहां से टीचर्स को नॉमिनेट करना है। क्योंकि क्या है, जो टीचर्स आप नॉमिनेट करेंगे स्कूल की तरफ से, हमें उनका एक रिकॉर्ड भी रखना है। किस स्कूल से कितने टीचर्स ट्रेन हुए हैं, तो पहले स्कूल रजिस्टर करेगा फिर नॉमिनेट करेगा। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, काफी जल्दी से हो जाएगा। प्रिंसिपल अगर है तो आप खुद से ट्राई करिएगा, 10-15 मिनट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नॉमिनेशन भी उतना ही ईजी है। टीचर का नाम डालना है, कुछ बेसिक डिटेल देनी है, एक ईमेल आईडी देनी है जिससे वो लॉग इन करेगा जाके वापस, जैसा मैंने आपको बताया। इतना ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का। साथ में एसआईसी में थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसमें आपको एक लेटर डाउनलोड करना है, लेटर ऑफ अथोराइजेशन, जो स्कूल के लेटर हेड पे होगा, वो साइन एंड सील करके आपको स्कैन करके सबमिट करना है। बाकी उसका भी रजिस्ट्रेशन काफी छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो आप कर लेंगे। एफिलिएशन का नंबर देना है, उसका एफिलिएशन लेवल कोई मतलब नहीं है, प्राइमरी है जूनियर है, कोई मतलब नहीं नहीं वैसा कोई मतलब नहीं। जी थैंक यू थैंक यू। विवेक कुमार राय जी। सर मैं ये कहना चाहता था कि जैसे फर्स्ट तो स्कूल रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो स्कूल रजिस्ट्रेशन में ईमेल जो डाला जाएगा वो स्कूल का ही रहेगा या प्रिंसिपल का जो भी हो। उसके बाद टीचर्स का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें टीचर अपना ईमेल आईडी डालेंगे या स्कूल वाला ही? देखिए अगर स्कूल का ईमेल आईडी है तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कई बार प्रिंसिपल स्कूल स्विच कर लेते हैं, किसी अन्य स्कूल में चले जाते हैं। तो स्कूल का अगर ईमेल है तो प्रिंसिपल वाले कॉलम में स्कूल का ईमेल डालिए, वहां पे लिखा हुआ है स्कूल। अगर स्कूल का नहीं है तो प्रिंसिपल का डाल सकते हैं, ठीक है। और टीचर्स का अपना पर्सनल ईमेल होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बीच में वो स्कूल छोड़े या किसी अन्य स्कूल में जाए या ट्रांसफर हो जाए उनका, उस केस में वो अपना पर्सनल ईमेल डालेंगे ताकि आगे भी लॉगिन करते रह सके। अगर उनका स्कूल उनकी बाद में ईमेल आईडी बंद भी करता है तो भी वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। और ट्रेनिंग पूरा करने पे इस लॉगिन के अंदर ही सारे सर्टिफिकेट आएंगे। हर एक मॉड्यूल का जितना पूरा करते हैं, हर एक मॉड्यूल का भी सर्टिफिकेट आएगा। और लास्ट में 5 मॉड्यूल करने के बाद इनोवेशन एम्बेसडर का सर्टिफिकेट भी आपको वहीं पे लॉगिन में ही डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट इज सुनील स्वयं। जी सर नमस्कार। नमस्कार, बताएं। सर पूछ रहे थे ये एक एक मॉड्यूल कंप्लीट करके हम लोग उसके लिए टेस्ट दे सकते हैं या फिर 5 मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही टेस्ट हो पाएगा?
नहीं, मैं समझ नहीं पाया, एक एक करके कंप्लीट करेंगे तो क्या शुरू हो जाएगा? जैसे 72 आवर्स का आप बोल रहे हैं 5 मॉड्यूल है, जी जी पांचों ये जो सर्टिफिकेट मिलना है हम लोगों को, अगर कंप्लीट करने के बाद आप बोल रहे हैं एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जी 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 तो वो इंडिविजुअली हर मॉड्यूल को कंप्लीट करके मिलेगा या पांचों मॉड्यूल कंप्लीट होगा उसके बाद फिर टेस्ट होगा, देन हम लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा? यहाँ पर दो तरह के सर्टिफिकेट है। एक तो हम हर एक मॉड्यूल के लिए भी देते हैं। अगर मान लीजिए आपने डिजाइन थिंकिंग का मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया और वो 18 घंटे का है, तो आपको वो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपका नाम होगा और आपने ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है, और नीचे सिग्नेचर वगैरह होंगे, उसका एक सर्टिफिकेट आईडी होगा, ये आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। लेकिन जब आप पांचों मॉड्यूल पूरा कर लेंगे तब आपको जाके इनोवेशन एम्बेसडर का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपको हर लेवल पे भी सर्टिफिकेट मिलेगा और फाइनल सर्टिफिकेट भी मिलना है, जो मिनिस्ट्री की तरफ से आपको इनोवेशन एम्बेसडर का किताब देगा कि आपने 72 घंटे की ट्रेनिंग कर ली है और अब आप इनोवेशन एम्बेसडर हैं। एक चीज और मैं बता देता हूँ कि जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें सभी टीचर्स को एक तय समय के अंदर 50 घंटे की करियर ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। तो अगर आप ये वाली ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे ये आपकी काउंट होगी पूरी की, ठीक है? तो ये भी आपको एक फायदा मिलेगा। जो 72 घंटे का सर्टिफिकेट है वो आपको ये फायदा भी एक देगा, इसलिए आपको पांचों मॉड्यूल करने, एक दो करके छोड़िएगा नहीं इसको। जी जी, थैंक यू। तो मैं आप सभी की हेल्प के लिए एक दो लिंक डाल दे रहा हूँ जो आपको बताएगा कि किस तरह से आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? तो ये पहली वाली जो लिंक है ये स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए है। इसको हम शॉर्ट में SIATP बोलते हैं, ठीक है? तो जो टेलीग्राम ग्रुप की भी आपको लिंक मिलेगी वो भी SIATP के नाम से मिलेगी, आप उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। ये है यूजर मैनुअल की वेबसाइट पे कैसे रजिस्टर करना है और कैसे आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है। साथ ही में स्कूल इनोवेशन काउंसिल कैसे इस्टेब्लिश करनी है उसकी प्रोसेस का लिंक भी डाल दे रहा हूँ। ये यूजर मैनुअल है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको दिया गया है। इसको शॉर्ट में हम SIC बोलते हैं, ठीक है? स्कूल इनोवेशन काउंसिल। तो SIC का यूजर मैनुअल, ये लिंक भी मैंने चैट में डाल दिया है, आप लोग कॉपी कर लीजिए और एक बार वेबसाइट पे जाके जरूर विजिट करिएगा, ठीक है? आप वहाँ पे जाएंगे तो प्रोसेस हमने इतना सिंपल और साधारण रखा है कि आप उसको आसानी से समझ के कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन को भी, नॉमिनेशन को भी, और ट्रेनिंग भी आराम से कर सकते हैं। ये आप अगर एक बार लॉगिन करना शुरू करेंगे तो आप देख के ही समझ जाएंगे कहाँ पे आपको ट्रेनिंग करनी है और कहाँ पे जाके सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। अगर किसी का अभी प्रश्न रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल जस्ट एंड दिस सेशन। So at the end, I guess, yeah. Pankaj, I guess all queries have been solved. We have Devi Prasad Nautiyal. We can hear his question. At the end, Govind sir will be addressing all of you. Okay. So if your questions are done, we will just invite Govind sir address. Hey Govind, इनका नौटियाल जी का हो गया क्वेश्चन, अभी किसी का क्वेश्चन नहीं बचे. So I would now like to request Govind sir to address the school principals or the school participants. Govind sir, over to you. थैंक यू पंकज जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छी तरह से आपका ये सारा जो इंस्ट्रक्शन, रजिस्ट्रेशन का इंस्ट्रक्शन और स्कूल इनोवेशन काउंसिल का बहुत अच्छी तरफ से आपने दिया है। थैंक यू डॉक्टर अभय जेरे सर। मैंने इस प्रकार प्रोग्राम में बहुत अच्छा हमको कुछ विषय मिला है, आगे जाकर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एंड थैंक यू ऑल्सो पूजा मैडम एंड एलगवन सर। तो ये सभी जितने हमें पूरे देश से ज्वाइन किया है, ये एक स्टार्टिंग था, ये प्राथमिक जानकारी
स्कूल इनोवेशन काउंसिल के बारे में था। तो इसमें बहुत डिटेल बताया गया है कि कैसा स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर हम कैसा हो सकते हैं और कैसा हम तरह तरह से मॉड्यूल को कंप्लीट करके हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें एक इनोवेशन के बारे में हमको कैसा करना, कैसा बच्चों को सिखाना और अलग माने बाकी विद्यालय को भी हम कैसा हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, इसका एक स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर का ये काम है। तो आगे चलकर इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे और डिटेल इसके बारे में हम योजना भी बनाएंगे और पूरे देश से जितने हम सभी ज्वाइन किया है इसमें सभी को मैं अभिनंदन करता हूं। इस प्रकार स्कूल इनोवेशन प्रोग्राम में हम ज्वाइन करके कुछ हम सीखेंगे, कुछ हम ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग के बाद फिर हम स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जिस प्रकार डॉक्टर अभय जरे सर बोले कि हम कुछ अपना देश को भी देंगे और पूरे दुनिया को भी देंगे, तो खुद सीखने के बाद ही वास्तव में दे सकते हैं। इसलिए इनोवेटिव थिंकिंग के लिए और इनोवेटिव एक्टिविटीज के लिए ये कुछ सीखना पड़ता है, कुछ जानना पड़ता है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अधिक हम ये बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये जो स्कूल इनोवेशन प्रोग्राम है और स्कूल इनोवेशन प्रोग्राम में जिस प्रकार का हमारे सभी एक्सपर्ट यहाँ हमको माने कुछ गाइड करते हैं, कुछ ट्रेनिंग देंगे, तो निश्चित रूप से हमको लाभ मिलने वाला है। और आगे जैसा जैसा हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद और इजी रजिस्ट्रेशन कैसा हो पाएगा उसके बारे में भी हम सोचेंगे। इसलिए सभी को मैं धन्यवाद करता हूं और इनोवेशन सेंटर का, इनोवेशन डिपार्टमेंट का डॉक्टर अभय जेरे सर और बाकी टीम को मैं फिर मेरा हृदय से मैं फिर एक बार अभिनंदन करता हूं और आगे के लिए, आगे सपोर्ट के लिए मैं अनुरोध भी करता हूं कि आगे भी इस प्रकार सपोर्ट करते रहें। तो हम कुछ विद्या भारती के माध्यम से, विद्या भारती स्कूल के माध्यम से आगे अच्छा इस प्रकार काम को ले जाएंगे। और एक बात उसमें रह गया है, डॉक्टर अभय जरे सर बता सकते हैं या कोई बता सकते हैं, तो हम अटल टिंकरिंग के लिए सेपरेट उसको कुछ करेंगे, एक्टिवेट करने के लिए उसको सेपरेट कुछ करेंगे या इस प्रकार इनोवेशन ये जो SIC ट्रेंड होने के बाद उसको करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार एंड में एक बार क्लैरिफिकेशन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है पंकज जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। इनोवेशन सेल इस पूरे वेंचर में पूरी तरीके से सभी स्कूल्स को सपोर्ट कर रहा है और हम आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट इसी तरह से करेंगे। आपको कोई भी समस्या आती है, किसी भी स्कूल को भी समस्या आती है, प्लीज ईमेल अस, प्लीज कॉल अस। एंड अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो उस टेलीग्राम ग्रुप में आप क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। रीजन वाइज टेलीग्राम ग्रुप भी है और एक मैन ग्रुप भी है। एक मैन ग्रुप जो होगा उसमें हम सारी जो भी डिटेल्स आपको ईमेल पे भी भेजते हैं वो वहां पर भी डालेंगे, तो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जेरे सर का भी यही अनुरोध था आप सभी से, और रीजनल ग्रुप्स भी आप सभी ज्वाइन करें। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ग्रुप में डाल दी है, आप वहां से उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गोविंद सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। Alan sir, you would like to highlight that tinkering lab component? ओके ओके, Unmute. एक बार बता दे तो अच्छा रहेगा। जी जी Yes, Sonal, I request Dr. Sonal to give formal vote of thanks. Sir, Sonal, you want to say something? Would you like to address that Atal tinkering lab component here, sir? Atal Tinkering Lab. No, I did not get you, Pankaj. So Govind sir is saying there was some discussion around Atal Tinkering Lab and the School Innovation Council. So I think I'm not aware of that, but if you are aware of that, would you like to address that? Sir, if you look into it, Atal Tinkering Lab, sir, we are looking into IoT, robotics, and 3D printing. These are the three elements which they are part of Atal Tinkering Lab. From Atal Tinkering Lab, establishment has been done in many schools, sir.
Now, what we are going to do is we at Ministry of Education through AICT, we have an Idea Lab we established, and we also have with higher education institutions, we have Center of Excellence lab related to IoT, robotics, 3D printer, and I can say emerging technologies in Industry 4.0 related domains. Through the School Innovation Council, we will be connecting these schools to this nearby higher education institution. Those schools already existing these Atal Tinkering Labs, they can go ahead with that. Beyond that, we will be connecting this to higher education institution, where the schools will be hand-holded by the higher education institution faculties and students to make sure that they are being comfortable with the emerging technologies to enhance their skills. This thing we are trying to link. Also, we have an incubation centers, say incubation centers funded by Department of Science and Technology. Like, we have Atal incubation centers, we have Technology Business Incubation Center, we have BIRAC incubation centers, which are supported and funded by different ministry to have a specific set of technologies within their incubation centers. The schools nearby will be connected to them so that the students will get hands-on experience and exposed to those technology and enhance the skill. This is part of our process of School Innovation Council, sir. So those things will be completely hand-holded them. As I said, like initially we will take them to and visit, creating a foundation of awareness about innovation, ideation, and entrepreneurship. Then guide them how to identify an idea, how to develop the prototype product development, then business planning, then become a startup, sir. This is a plan which we have for next 1 year time. 1.5 years, we will take this one. Then slowly, those students are being good in the startup part, and then we are also planning to fund them up to 10 lakh rupees to develop their product and start their startup. This is the complete background of the complete process of having this School Innovation Council. So to make sure that school aware of this innovation, ideation, and entrepreneurship, we have established the School Innovation Ambassador Training Program, so that the foundation is being created. We requested at least minimum 5 teachers from respective school to join, get a foundation with. In turn, they will be training their colleagues within the school, also train the teachers. This is how which we are planning to take it in the complete journey of innovation part. Thank you, sir. Thank you so much. तो अटल टिंकरिंग लैब, स्कूल इनोवेशन काउंसिल मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देंगे जहां पर आपके बच्चे इनोवेशन कर सकते हैं और उन चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। सर ने भी शुरू में बताया था कि 360 डिग्री का एक प्रोग्राम है, स्कूल इनोवेशन काउंसिल की एक्टिविटीज़ को अलाइन करता है। तो उसी माध्यम में, उसी एक रास्ते पर अटल टिंकरिंग लैब भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी के साथ नाउ आई लाइक टू इन्वाइट डॉक्टर पूजा और डॉक्टर सोनल, our colleague, for formal vote of thanks. Thank you, Pankaj. So on behalf of Ministry of Education's Innovation Cell, AICT and CBSE, I extend a really hearty vote of thanks to our guest speaker, Sri Govind Chandmohanta, Joint Organizing Secretary of Vidya Bharati Schools, and Dr. Abhay Jere, CIO from MIC, who spared time from their busiest schedule to make this session so insightful. I'm sure your thoughts have enlightened everybody's mind. And I hope this session will surely be going to encourage and motivate all the schools and teachers to be a part of SIC. Also would like to express my gratitude to Dr. Ellen Govind, Assistant Director from MIC, and the state coordinators of SIC and SITP, that is Dr. Pooja Rawat and Sri Pankaj Pandey. Last but not the least, a big thank you to each one of you who have made this session reminiscent for all of us. Thank you all. Thank you everyone. इस पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग को मैंने चैट में डाल दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं, और जो लिंक आपको यूट्यूब का मिला था, आप कभी भी जाके इस पूरी रिकॉर्डिंग को रेफर भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की वापस जाने की जरूरत है। विद दिस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. नाउ वी आर एंडिंग दिस सेशन. थैंक यू सो मच. Thank you.